آداب سے میں ہوں صفی اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ RTC بسوں کے کرائے میں اضافے کا حکومت نے کیا اعلان، منگل کی نصف شب سے نئی قیمتیں وصول کی جائیں گی۔ گروپ آف منسٹرز تلنگانہ کے مسئلے پر 12 اور 13 نومبر کو کل جماعتی اجلاس طلب کرے گا۔ کل جماعتی اجلاس کے لیے کانگریس اور تلگو دیشم میں سرگرمیاں تیز، بوتسا ستینارائن اور چندر بابو نائیڈو سے پارٹی قائدین کی ملاقات۔ اور پٹاخوں سے متاثر ہونے والے 30 بچے علاج کے لیے سروجنی ہاسپٹل سے رجوع۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے مطابق کہیں پر بھی محرم الحرام کا چاند نظر آنے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ کل یعنی بروز منگل کو 30 ذی الحجہ ہوگی اور چہارشنبے کو یکم محرم رہے گی۔ ریاستی حکومت نے RTC بسوں کے کرائے میں اضافے کو منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق AC بسوں کے کرائے میں 12%، لگژری ڈیلکس بسوں میں 10% اور پلے ویلگو و دیگر عام بسوں میں 8% کے اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اضافہ کیے گئے کرایوں میں منگل اور چہارشنبے کی نصف شب سے عمل آوری ہوگی۔ RTC ذرائع کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں اضافہ اور حالیہ ہڑتال سے ہوئے نقصانات کی وجہ سے کرایوں میں اضافہ ناگزیر ہو گیا تھا۔ ریاست کی تقسیم کے معاملے پر منعقد ہونے والے کل جماعتی اجلاس کی تواریخ کو خطیت دے دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق یہ اجلاس 2 مرحلوں میں 12 اور 13 نومبر کو منعقد ہوگا۔ وزارت داخلہ نے اس اجلاس کے لیے ریاست کی 8 سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 12 نومبر کو پہلے 4 سیاسی جماعتوں اور 13 نومبر کو ماباقی 4 جماعتوں سے بات چیت کی جائے گی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے سیاسی جماعتوں کو مکتوب بھی روانہ کیے جا چکے ہیں۔ YSRCP اور تلگو دیشم نے مکتوب کا جواب دینے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ کانگریس اس معاملے پر منقسم نظر آتی ہے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹری ڈگ وجے سنگھ نے کہا ہے کہ TRS سربراہ KCR کو جو بھی کہنا ہے وہ وزراء کی بااختیار کمیٹی سے کہہ سکتے ہیں۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے KCR کو غیر ضروری بیانات سے گریز کرنے کا مشورہ دیا۔ ڈگ وجے سنگھ نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں سے صلاح و مشورے کے بعد ہی کانگریس نے بہت ہی سوچ سمجھ کر ریاست کی تقسیم کا فیصلہ لیا ہے۔ تلگو دیشم کے موقف کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ڈگ وجے سنگھ نے کہا کہ گروپ آف منسٹرز پر تلگو دیشم کی تنقیدیں مناسب نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اینٹونی کمیٹی کو بھی تلگو دیشم نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے سوال کیا ہے کہ ایسے وقت جب حیدرآباد بین الاقوامی سطح پر اپنی پہچان بنا چکا ہے، ایسے میں شہر کی جغرافیائی حدود کی لکیریں کھینچنا کہاں تک مناسب ہے؟ کرن کمار ریڈی نے ضلع رنگا ریڈی کے آدی پٹلہ میں ایئر بیس پاک کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ کرن کمار ریڈی نے ملک کے خلائی پروگرام میں حیدرآباد کے رول کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ خلائی پروگرامز کے ضروری سامان کی تیاری میں اب حیدرآباد کا اہم رول رہا ہے اور عالمی سطح پر حیدرآباد کی منفرد پہچان بن چکی ہے۔ اس موقع پر دیگر ریاستی وزراء بھی موجود تھے۔ ریاست کی تقسیم کبھی کی ہو چکی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ دامودراج نرسمہا کی قیامگاہ پر تلنگانہ قائدین کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ریاستی وزیر جانا ریڈی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی تقسیم پر پردیش کانگریس کمیٹی کی جانب سے ایک ہی نمائندگی بھیجے جانے کے لیے صدر PC سے درخواست کی گئی ہے۔ جانا ریڈی نے بتایا کہ حیدرآباد آ رہے صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی سے بھی ملاقات کا وقت مانگا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کل تلنگانہ کے کانگریسی قائدین صدر PCC سے نمائندگی کریں گے۔
और बताया कि वज़रा की बाख्तियार कमेटी से नुमाइंदगी और रिपोर्ट पेश करने की जिम्मेदारी नायब वज़ीर आला दामोदराज नरसिम्हा और उत्तम कुमार रेड्डी को सौंपी गई है। వారి వారి వ్యూస్ అభిప్రాయాలతో పాటు రియాక్షన్స్ వాళ్ళ రిక్వెస్ట్లు ఏదైనా లేఖ రూపంలో అందజేయమని ఆదేశించినటువంటి విషయం మీ అందరికీ తెలుసు। ఆ విధంగా అన్ని పార్టీలకు ఈ మంత్రుల బృందం యొక్క कुल जमाती इजलास से कबल रियासत की तकसीम का फैसला लेने वाली कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त सरगर्मियां देखी जा रही हैं। कांग्रेस इस मसले पर एक बार फिर दोनों इलाकों के कायदीन से बातचीत कर रही है। पीर को जैसे ही कुल जमाती इजलास की तवारीख का ऐलान हुआ, रियासती कांग्रेस की जानिब से दोनों इलाकों के कायदीन से बातचीत के अमल का आगाज हो गया। सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने अपनी क़ियामगाह पर तेलंगाना के कायदीन बशमुल वज़रा से मुलाकात की। इजलास के दौरान तेलंगाना कायदीन ने सदर पीसीसी से सीमा आंध्रा कायदीन की अदम मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। तेलंगाना कायदीन ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि रियासती कांग्रेस से वज़रा की बाइख्तियार कमेटी को जो भी जवाब दिया जाएगा उसमें और रियासत की तकसीम का जिक्र होना चाहिए और मुत्तहिदा आंध्रा का हवाला नहीं दिया जाना चाहिए। बाद में मीडिया से बात करते हुए सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने कहा कि दोनों इलाकों के कायदीन रियासत की तकसीम के मामले पर अटल हैं। उन्होंने बताया कि सदर पीसीसी की हैसियत से उन्होंने तेलंगाना कायदीन से मुलाकात की है और शाम में वो सीमा आंध्रा के कायदीन से भी वज़ीर आला के कैंप ऑफिस में मुलाकात करेंगे। बोत्सा ने वाज़ेह किया है कि कुल जमाती इजलास में नुमाइंदगी और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को मकतूब लिखे जाने का फैसला सीमा आंध्रा कायदीन से मुलाकात के बाद ही किया जाएगा। పరిణామాలు జరుగుతున్న విషయాలన్నీ కూడా తీసుకున్న నిర్ణయాలు జరుగుతున్న పరిణామాలు అందరికీ తెలిసిన విషయమే। అందులో భాగంగా కేంద్ర హోంశాఖ రాష్ట్రంలో ఉన్న రాజకీయ పార్టీలన్నిటికీ కూడా ఒక లేఖను రాసి లేఖతో పాటు ఒక ఎజెండాను కూడా పంపి దీని మీద మీ అభిప్రాయాలు చెప్పమని చెప్పని వారు చెప్పడం జరిగింది। तेलुगुदेशम के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू की क़ियामगाह पर पार्टी की सीमा आंध्रा कायदीन का इजलास मुनक़िद हुआ। ज़राए के मुताबिक रियासत की तकसीम के मामले पर मरकज़ के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म को मकतूब लिखने और सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी का जायज़ा लिया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने कहा कि उनका ज़ाती नज़रिया यह है कि तेलुगुदेशम को वज़रा की बाइख्तियार कमेटी से रुजू होने की ज़रूरत नहीं है। तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि कांग्रेस दोनों इलाकों के अवाम के लिए नहीं बल्कि अपने हलीफों YSRCP और TRS को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रियासत को तकसीम कर रही है। सोमिरेड्डी ने सवाल किया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 2 मरतबा ईमेल्स भेजे हैं, लेकिन फैसला लेने के बाद ही ईमेल्स भेजने का क्या मकसद है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि एंटोनी कमेटी ने रियासत का दौरा क्यों नहीं किया। కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ రాష్ట్రపతి గారిని కలవనున్నాం రాత్రి 8:30కి। ఆయన దృష్టిలో కూడా పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాం। ఏంటంటే ఈ జరిగిన ప్రక్రియ దిగ్విజయ్ సింగ్ లాంటి వాళ్ళ చేతుల్లోకి వదిలిపెట్టి ఆఖరణ యాంటోనీ కమిటీ అని చెప్పి సోనియా గాంధీ గారు అధికారిక కమిటీ పంపిస్తానని ఎక్కడ ఆంధ్ర రాయలసీమలో స్టేక్ హోల్డర్స్ 2 ప్రాంతాల్లో తెలంగాణలో కానీ స్టేక్ హోల్డర్స్తో మాట్లాడమన్నాము। శ్రీకృష్ణ కమిటీ 5th ఆప్షన్లో చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది। कांग्रेस रुकन कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासत की तकसीम के मामले पर सीमा आंध्रा कायदीन के मौक़िफ़ पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस आला कमान और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले के बाद अलहदा तेलंगाना मसले पर धमकियां देना मुनासिब नहीं है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि पार्टी के तमाम कायदीन को फैसले की पाबंदी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के तमाम कायदीन को रियासत की तकसीम के मामले पर एक आवाज़ में बात करनी चाहिए। उनका कहना था कि ज़ाती नज़रियात की पार्टी आलाकमान के फैसले के आगे कोई अहमियत नहीं है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि रियासत के कांग्रेसी कायदीन को रियासत की तकसीम के बाद अपने नज़रियात और मशवरे आलाकमान को रवाना करने चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों इलाकों की तरक्की के लिए मिलकर कोशिशें करनी चाहिए। దానికి జవాబు ఇచ్చే మాకు కూడా ఉంది, కానీ ముందు వాళ్ళు ఒకసారి హైకమాండ్ కు ఈ పరిస్థితులు తెలిపిన తర్వాత దీని మీద మేము ఏం ఆలోచించాలా, మళ్ళీ మేము కూడా ముఖ్యమంత్రిని గుర్తించాలా వద్దా, ఆ విషయాల్లో ఏం నిర్ణయించాలి।
टीआरएस रुकन असेंबली केटीआर ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील को रोकने के लिए चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआरसीपी के सदर जगन मोहन रेड्डी की कोशिशें जहालत का नमूना है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रियासत की तकसीम के फैसले को रोकने के लिए चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी की सदर जमहूरिया से मुजवज़ा मुलाकात को भी नामुनासिब करार दिया। केटीआर ने कहा कि दस्तूर के मुताबिक तेलंगाना की तश्कील के अमल को सदर जमहूरिया मंजूर करेंगे। केटीआर ने हैदराबाद की तरक्की का सहरा अपने सर बांधने के चंद्रबाबू नायडू के रिमार्क्स को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि जहनी दिवालियापन का शिकार होकर सदर तेलुगुदेशम इस तरह की बातें कर रहे हैं। हैदराबाद शहर 400 साल तारीख रखता है और पहले से ही यह शहर तरक्की याफ्ता है। रियासत की तकसीम के मसले पर तेलुगुदेशम का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है। मीडिया से बात करते हुए वाईएसआरसीपी के लीडर रोजा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम समझती है जो भी करना है सोनिया गांधी को करना है, हम खामोश तमाशा देखेंगे। उन्होंने सवाल किया कि मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी के लिए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, सदर पीसीसी और तेलुगुदेशम सरबराह ने क्यों वज़रा की बाख्तियार कमेटी को मकतूब नहीं लिखा है। रोजा का कहना था कि किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू को अपने जिले के अवाम की मुश्किलात का भी एहसास नहीं है। సమయ కేంద్రాన్ని ముసుగు వేసుకొని ఈరోజు విభజన త్వరితంగా జరిగేదానికి అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఈరోజు తెలుగు ప్రజల వెన్నుపోటు పడడంలో रियासती वजीर सानवी तालीम पार्थसारथी ने पीर को आबकारी कांस्टेबल्स के तकर्रुरात के लिए मुनक़दा तहरीरी इम्तिहान के नताइज जारी किए। मीडिया से बात करते हुए पार्थसारथी ने बताया कि इस इम्तिहान में 766 उम्मीदवारों के में जुमले 40 खातून उम्मीदवार अहल करार दिए गए हैं। पार्थसारथी ने बताया कि अहल करार दिए गए उम्मीदवारों को एक हफ्ते में तकर्रुरनामे हवाले किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 11 साल से तकर्रुरात न होने से महकमे की कारकर्दगी मुतासिर हो रही थी और मुतालिका ओहदेदारों की तवज्जो दहानी पर तकर्रुरात का फैसला किया गया था। तेलुगुदेशम रुकन कौंसिल एन राजकुमारी ने कहा है कि रियासत की तकसीम के मामले पर कायम की गई वज़रा की बाइख्तियार कमेटी काबिल भरोसा नहीं है। तेलुगुदेशम के सदर व दीगर कायदीन के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए राजकुमारी ने कहा कि रियासत की तकसीम से अवाम को पेश आने वाली मुश्किलात से तेलुगुदेशम के सदर को वाकिफ करवाया गया है और उन्होंने सदर जमहूरिया से मुलाकात करते हुए तमाम मसाइल पर तवज्जो दिलाने से इत्तेफाक किया है। राजकुमारी ने वज़रा की बाइख्तियार कमेटी में रियासत के किसी भी अवामी नुमाइंदे को शामिल ना करने को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि टीआरएस और कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन इश्तियाल अंगेज बयानात के जरिए सीमा आंध्रा अवाम की तौहीन कर रहे हैं। हल्के पार्लिमान हैदराबाद में अहम आबी प्रोजेक्ट्स और ज़ेर तकमील आबी प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील के सिलसिले में रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अरकान असेंबली मुमताज़ अहमद खान, अहमद पाशा कादरी और अहमद बलाला के हमरा MD वाटर वर्क्स से नुमाइंदगी की है। वाटर वर्क्स के अहम ओहदेदार और इंजीनियर्स भी इस इजलास में मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने मुख्तलिफ इलाकों में जारी प्रोजेक्ट्स के कामों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अरकान असेंबली ने भी अपने अपने हलकों के मसाइल से वाकिफ करवाया। अहमद पाशा कादरी ने इजलास की तफसीलात से वाकिफ करवाया। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुली मिल्लत इत्तेहाद मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट, आज मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर वर्क से मुलाकात किए। उनके साथ मैं और मुमताज़ अहमद खान साहब MLA, अहमद बलाला साहब MLA किए। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के मुख्तलिफ इलाकों के तरक्याती कामों के ताल्लुक से सदर मजलिस की एक तरफी नुमाइंदगी हुई, जिसमें याकुतपुरा, चार मीनार, मलकपेट, कारवान, चंद्रान गुड्डा, बहादुरपुरे के मसाइल के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया गया और कुछ कामों की तेज़ी से तकमील के ऊपर भी जोर दिया गया। और इस सिलसिले में बालसदी के रिजर्वेयर का और पारदीवाड़ी में वाटर लाइन का जो काम कई ज़माने से पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उसकी जल्दी यकसुई के लिए कहा गया। बड़ा काम जो अजाखान ज़रात से सुल्तान शाही तक प्रोजेक्ट की तरफ से जो काम बीच में रोक दिया, मंडी बिलाली के पास रोक दिया गया, वो काम को फौरी तकमील करने के लिए बताया गया, जिससे बाई लाइन जो अतराफ़ की बस्तियों की जो मेन लाइन में कनेक्शन मिलने का है उसमें सहूलत होगी इस पर। तो प्रोजेक्ट के लोगों ने इस ताल्लुक से कहा कि हम वो काम को फिर फौरी शुरू करेंगे
इस सिलसिले में सदर मजलिस अपने MP फंड से भी काफ़ी तरक्याती कामों में एस्टीमेट तैयार होने के बाद MP फंड से भी रकम देने का उन्होंने तयक़ुन दिया और जुमला इलाकों में पानी के सरबराही के लिए जो टांकियाँ बने गए, जो जंक्शन इम्प्रूवमेंट रोके गए, उसको फौरी तकमील करने के लिए बताया गया और MD ने वादा किया कि 1 महीने भर के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा और वहाँ पर पानी के कनेक्शन के लिए जितने पानी के टांकियाँ बने हुए खुसूसन चंद्रान गुट्टा असेंबली हल्के में वहाँ पे पानी के जंक्शन करने, कनेक्शन देने के ताल्लुक से भी MD को नुमाइंदगी की गई। रुकन असेंबली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने बल्दी हल्के हुसैनी अलम के जलाल कुंचा और दीगर मोहल्लेजात का पैदल दौरा किया। रुकन बल्दिया मीर जुल्फ़िकार अली के हमरा उन्होंने इन इलाकों में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अवाम ने पानी की सरबराही में बेकायदगी की शिकायत की है, जिसके सदबाब के लिए हिदायत दी गई है। मजलिसी अरकान बल्दिया ख्वाजा बिलाल और रियाजुल हसन आफंदी ने वक्फ बोर्ड और बल्दी ओहदेदारों के साथ इमाम बाड़ा वाक़ई याकूतपुरे का दौरा किया। माह मुहर्रम के मौके पर इस इमाम बाड़े के अहम मसाइल की यकसुई के लिए ओहदेदारों को मुतवज्जो किया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी टाइम स्केल एम्प्लॉयज कमेटी ने कैंपस में धरना देते हुए अपने मुतालिबात की तकमील पर जोर दिया है। इन मुलाजिमीन ने अपने बकाया जात फौरी अदा करने का मुतालबा किया है। एहतजाजियों ने वाइस चांसलर और इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। करमनघाट के कब्रिस्तान में ड्रेनेज का पानी दाखिल होने से क़ुबूर का तक़द्दुस पामाल हो रहा है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि कब्रिस्तान करीब 55 साल पुराना है, जहां अब लोग न सिर्फ कचरा फेंक रहे हैं बल्कि महकमे बल्दिया ने रातों रात करीबी रिहायशी इलाके के गंदे पानी की लाइन का रुख दीवार तोड़कर कब्रिस्तान में मोड़ दिया है, जिसकी वजह से कब्रिस्तान में ताफून फैल गया है। इसके अलावा गैर समाजी अनासिर ने कब्रिस्तान को शराब नौशी का अड्डा बना लिया है और वो कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मुकामी अफराद ने कमिश्नर बल्दिया से मुतालबा किया है कि इस मसले की जल्द यकसुई कर दे। बेगमपेट में पाटीगड्डा मस्जिद के करीब कचरे के अंबार से मुसल्लियों को दुश्वारियां हो रही हैं। मुकामी अफराद ने बताया कि मुतालिका हुक्काम से इस सिलसिले में कई मरतबा शिकायतें की गई हैं, इसके बावजूद मसले की यकसुई नहीं की गई। कॉरपोरेटर और मुतालिका रुकन असेंबली को भी कोई दिलचस्पी नहीं। दिन ब दिन कचरे में इजाफे से इलाके में ताफून फैल रहा है। सरोजनी देवी आंखों के दवाखाने में पटाखों से मुतासिर होने वाले तकरीबन 30 बच्चों को रुजू किया गया है। सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि गुज़िश्ता चंद बरसों से पटाखे जलाने के महफूज तरीकों से अवाम को वाकिफ करवाने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है, इसके हौसला अफजा नताइज बरामद हो रहे हैं और इस साल मुतासरा अफराद और बच्चों की तादाद कम है। उन्होंने कहा कि तकरीबन तमाम बच्चों को इब्तिदाई इलाज के बाद घर भेज दिया गया। सरोजनी दवाखाने में एक पागल शख्स ने कुछ देर के लिए हलचल मचा दी। नीम बरहना पागल ने, जिसकी आंख का इलाज किया गया था, अचानक दवाखाने में मौजूद दीगर अफराद को मारपीट शुरू कर दी और अजीब व गरीब हरकतें करने लगा। बड़ी मुश्किल से इस पर काबू पाया गया। अमान नगर में मकान की तीसरी मंजिल से गिरकर एक कमसिन लड़के की मौत वाक़ई हो गई है। 3 साला मिर्जा फरहान बेग इतवार को इत्तेफाकी तौर पर मकान की तीसरी मंजिल से गिर गया था। उसे दवाखाना ले जाया गया, जहां वो दौरान इलाज फौत हो गया। आरटीए की जानिब से खानगी बसों की जांच का सिलसिला जारी है।
महकमे ने इतवार के दिन करीब 42 बसों को जब्त कर लिया है, जबकि रियासत भर से परमिट से मुतालिक ज़ाब्तों की खिलाफवर्जी करने वाली 190 बसों को जब्त कर लिया गया। जब्त शुदा बसों में ऐसी बसें भी शामिल हैं जो तिजारती अगराज के लिए साजो सामान और पटाखे ले जा रही थी। लंगर हाउस में हजरत शाह मीरा हुसैनी अल हुसैनी बगदादी के 350वें उर्स शरीफ की तकारीब का इख्तिताम हो गया। हफ्ते के दिन संदल मुबारक बरामद हुआ था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आरटीसी बसों के किराए में इजाफे का हुकूमत ने किया ऐलान। मंगल की निस्फ शब से नई कीमतें वसूल की जाएंगी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स तेलंगाना के मसले पर 12 और 13 नवंबर को कुल जमाती इजलास तलब करेगा। कुल जमाती इजलास के लिए कांग्रेस और तेलुगुदेशम में सरगर्मियां तेज। बोत्सा सत्यनारायण और चंद्रबाबू नायडू से पार्टी कायदीन की मुलाकात। और पटाखों से मुतासिर होने वाले 30 बच्चे इलाज के लिए सरोजनी हॉस्पिटल से रुजू। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।